see this topic aeration. Okay, so what is actually aeration? We'll see first. Okay, so what is the aeration? The process of absorbing oxygen from air is known as aeration. The word itself is coming from, it is related to air. Okay, the process of absorbing oxygen, where the oxygen is absorbing by your water. Okay, so that is the aeration. You can say, simply you can see the addition of oxygen is known as the aeration. Okay, the process of bringing water and air into close contact in order to remove dissolving gases such as carbon dioxide and to oxidize the dissolved metals such as iron. अभी आपने देखा होगा, if you see your water, sometimes it has some bad smell, a foul smell, or you can say a bad odor, which is not acceptable, and we used to refuse that water. Okay, we can remove these things by aeration as well. That is possible. Why this smell is coming, or why this bad odor is coming? Just because of the presence of the volatile organic matters. Okay, so due to the presence of that, this happens. Also, there are some dissolved gases which are present over there, like carbon dioxide and hydrogen sulfide. These are also gases which create a bad odor and bad odor and bad taste. Okay, so the first our principle is that we have to remove the constituents which pollute the water. Okay, so the objective of the aerations methods are like to remove a taste and odor caused due to organic gases. Okay, next is to increase the dissolved oxygen content. We are adding oxygen to our water. It means that we are increasing the value of oxygen in the water. We are increasing the DO value. Sorry, we are increasing the DO value. So removes the hydrogen sulfide and odors due to it. It decreases the CO2 content and raises the pH. जैसे से आपका CO2 कंटेंट कम होगा, आपका pH का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा. ठीक है, क्योंकि CO2 रिमूव होके हम ऑक्सीजन तो बराबर प्रोवाइड कर रहे हैं. इट मेक फॉर्म H2O, which will help the pH value. Remove iron and manganese. Due to agitation, bacteria may get killed and can be used for a mixing chemical. So these are the some simple objectives of the aeration method. So what are the various constituents that are commonly affected by aeration are? कौन-कौन सी चीजें present रहता है जो आपके water को bad odor या bad taste provide करता है? So those are carbon dioxide, hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide का जो smell होता है, जो odor होता है, that is rotten egg, सड़ा हुआ अंडा, उसके जैसा उसका odor होता है. Then methane, it is a flammable gas, तो उसमें भी उसके कारण उसका ऑर्डर टेस्ट हो जाता है. उसका मतलब जो ऑर्डर आएगा, जो टेस्ट आएगा, कैसे आएगा? फ्लेमेबल जैसा आएगा. नेक्स्ट इज आयरन विल स्टेन क्लॉथ्स एंड फिक्सचर्स. आपके जो भी अपॉर्डेंस है उसको खराब करने के फुल उसमें कैपेसिटी है. ओके, नेक्स्ट इज मैग्नीज. सो इट विल बी लाइक अ ब्लैक स्टेन्स. Okay, so that's why it is important to remove all this, and this all are removed by the one process that is known as aeration. Okay, so we'll see these constituents how badly it affect on the water. So we'll see this about a carbon dioxide. So let us talk about this. Carbon dioxide is a common gas produced by animal respiration, or you can say it's not only animal respiration. ये मतलब इंसानों के द्वारा भी होता है. But why we are saying specifically animals? Because here we are further talking about the aquatic life. ठीक है, एक्वेटिक लाइफ में क्या क्या आएगा? एक्वेटिक लाइफ में आपका आएगा जो पानी के अंदर में जीव जंतु रहते हैं वो सब. Apart from being naturally present in the air, it is produced by a combustion of a fossil fuels. Also, it is coming from the fossil fuels. Fossil fuels यानी कि पानी के अंदर में जो बहुत लाखों साल से अंदर में पानी के अंदर दबा हुआ है, तो उसमें से भी गैस रिलीज होती रहती है in the terms of CO2. As well as जो आपका photosynthesis होता है उसमें भी आपका CO2 रिलीज होता है. It is used by a plant in the photosynthesis processes. Surface water have a low carbon dioxide content generally in the range of 0 to 2 mg per liter. I repeat, yeah, इसमें थोड़ा जोर देखिए. इसमें surface water have a low carbon dioxide content. Surface water have a low कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट. बहता हुआ जो पानी रहता है आपका, या आपके एटमॉस्फेरिक के
कांटेक्ट में जो वाटर है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसमें हमेशा CO2 कंटेंट आपका लो होगा, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से आपका ऑक्सीजन धीरे धीरे उसमें परकुलेट हो रहा है, मिक्स हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज जनरली इन द रेंज ऑफ 0 to 2 mg per liter. But water from a deep lake or reservoir can have a high carbon dioxide. I repeat, सरफेस वाटर में इसका जो CO2 लेवल होता है वो कम होता है, whereas जैसे जैसे आप नीचे गहराई में जाओगे पानी के, चाहे आपका लेक हो या रिजर्वायर हो, you will have a high carbon dioxide content due to the respiration of a microscopic animals. मतलब पानी के नीचे इतने कीड़े हैं, इतने जीव जंतु हैं, इतने बायोडाइवर्सिटी इतनी अच्छी, मतलब इतनी है वहां पे कि जो भी आपके स्मॉल इंसेक्ट्स भी रहेंगे तो उनके रेस्पिरेशन से जो CO2 रिलीज होता है, दैट इज एक्यूमुलेटिंग, ओके, एंड इट इज ट्रैप्ड इन वाटर ओनली. So microscopic animals and lack of abundant plant growth at the lake bottom. और वैसे ही कोई भी रिजर्वायर हो, कोई भी लेक हो, उसके बॉटम में उसके जो मतलब उसके बॉटम में जो ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं जो पानी के अंदर सरवाइव कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई दैट इज आल्सो अ कंट्रीब्यूटर इनटू CO2. The concentration of a carbon dioxide varies widely in the groundwater, but the level are usually higher than its surface water. I repeat, concentration of carbon dioxide varies widely in a groundwater. आपके ग्राउंड वाटर में भी CO2 की वैल्यू बढ़ती जाएगी. क्यों? उसके वो क्यों ऐसे आपका वाटर जैसे जैसे डीप बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपका CO2 रिलीज हो, क्योंकि ये आपके सॉइल में भी प्रेजेंट है आपका CO2. जैसे जैसे हम लोग डीपर जाते जाएंगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो भी राइज करता रहता है. ओके, सो बट द लेवल आर यूजुअली हायर देन द सर्फ. बट ये क्या बोल रहे हैं कि CO2 की जो भी वैल्यू रहेगी वो आपके सरफेस से हमेशा ज्यादा ही रहेगा, सरफेस वाटर से हमेशा ज्यादा रहेगा. वाटर फ्रॉम अ डीप वेल नॉर्मली कंटेन लेस देन, आई रिपीट, वाटर फ्रॉम अ डीप वेल नॉर्मली कंटेन लेस देन 50 mg per liter. अब देखो कहाँ 0 से 2 mg per liter है, कहाँ पे 50 mg per liter. बट a shallow well have a much higher level up to 50 to 300. Now you can see deep के लिए है 50 mg per liter, whereas for a shallow level it is a 50 to 300 mg per liter. Now excessive amount of carbon dioxide above ranges of 5 to 15, यानी कि आपके देखिए यहाँ पे 0 to 2 ऐसे ज्यादा 5 to 15 mg per liter in a raw water can cause 3 operating problems. अगर आपका CO2 concentration 5 to 15 mg per liter से ज्यादा होगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है? द मेजर प्रॉब्लम विल बी लाइक इट इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ द वाटर. आपके जो आपका जो वाटर है उसके जो एसिडिटी है उसको बढ़ा देगा. कहने का मतलब कि उसका जो pH के वैल्यू है वो 7 से कम हो जाएगा. एंड मेकिंग इट corrosive. Carbon dioxide forms a weak acid, that is H2CO3, that is known as a carbonic acid. Okay, due to presence of CO2 it forms a carbonic acid. Next is it tends to keep iron in solution, thus making iron removal more difficult. It tends to keep iron in a solution, thus making iron removal more difficult. ठीक है, आपके वाटर से आपका CO2 अगर ज्यादा रहेगा, ज्यादा अमाउंट में रहेगा, तो आपको आयरन अगर रिमूव करना है तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. यू कैन नॉट रिमूव आयरन इजीली. ओके, so it react with the lime added to soften water, causing an increase in the amount of lime needed for the softening reaction. जब आपको आपका वाटर जो भी रहेगा वो हार्ड CO2 के प्रेजेंस के कारण वो वाटर आपका हार्ड रहेगा, जिसके कारण आपका जो लाइम क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर सकता है उसको सॉफ्टनिंग पर्पस करने के लिए. ओके, दैट इज दोज आर द प्रॉब्लम्स. Most aerators can remove a carbon dioxide by the physical scrubbing or sweeping action. I repeat, scrubbing or sweeping action caused by a turbulence. अभी आपका वाटर में एयर मिक्स कीजिए या एयर में वाटर मिक्स कीजिए, ठीक है, तो बहुत सेम, मतलब दोनों तरीके हैं, आप एरिएशन कर सकते हो. At a normal water temperature, aeration can reduce the carbon dioxide content of a water to as little as a 4.5 mg carbon dioxide per liter. Okay. Now next is the hydrogen sulfide. This is a poisonous gas. Hydrogen sulfide is a poisonous gas. The hydrogen sulfide can present dangerous problem in a water treatment. Brief exposure less than a 30-minute to hydrogen sulfide can be a fatal if the gas is breathed in a concentration as low as 0.03 present by a volume in the air. So this is a very poisonous gas.
अगर 30 मिनट भी आपके वाटर के कांटेक्ट में रहेगा तो आपको मतलब सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ सकता है. ओके. द इमीडिएट डेंजरस ऑफ लाइफ एंड हेल्थ. I repeat, the immediate dangers of a life and a health level for hydrogen sulfide is 300 ppm. This is the higher level, that is the 300 ppm. इससे ज़्यादा रहा तो आपका डेथ होने के चांसेस बढ़ जाता है. So we have to be less than that. The hydrogen sulfide occurs mainly in a groundwater supplies. ये आपका जो हाइड्रोजन सल्फाइड है जनरली आपके ग्राउंड वाटर में ही मिलेगा, क्योंकि ग्राउंड से आपके जो गैसेस है वो रिलीज होती रहती है. इट मे कॉज बाय द एक्शन ऑफ आयरन ऑफ द सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया इन द वेल. The rotten egg odor often noticed in the well water it causes by a hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide in a water supply will disagreeable alter the taste of coffee, tea and ice. Hydrogen sulfide gas is a corrosive to piping. Again, this is the sulfurous content. हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसमें सल्फर कंटेंट है जो कि आपका कोरोसिव नेचर होता है और उसके कारण आपके पाइप हो गया या टैंक हो गया या वाटर हीटर हो गया या कॉपर अलॉयज हो गया, दैट जो भी उसके कॉन्टेक्ट में आएगा उसमें रस्टिंग होने के चांसेस बढ़े आएंगे, कोरोसिव होने के चांसेस बढ़े आएंगे. तो ओकेशनल डिसइंफेक्शन ऑफ द वेल कैन रिड्यूस द bacteria producing the hydrogen sulfide. Now next is methane. Again, methane is also toxic and poisonous gases जो आपका flammable purpose के लिए use किया जाता है या burning purpose के लिए भी use किया जाता है. Methane gas can be found in a groundwater. It may be formed by the decomposition of organic matter. Yes, of course. आपके जो fossil fuels हैं उसमें से ये मतलब methane gas generate होगा या बेसिकली आपका जो भी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है तो उसमें मीथेन CH4 जो है वो आपका रिलीज होता है. इट कैन बी फाउंड इन अ वाटर फ्रॉम एक्वाफायर्स. ये तो 11 बजे शुरू किया है, 11 से 12 कुछ हुआ सर कॉन्टेक्ट? 12 बजे एक मीटिंग तो ले. हाँ ठीक है, हाँ 50 कॉल. हाँ ठीक है, मैं छोड़ता हूँ. I'm sorry. So where we are here, a corrosive gas that is a highly flammable and explosible. What I'm telling you is that कि आपका जो fossil fuel होता है उसमें से आपका मीथेन गैस निकलता है या जो भी आपका ऑर्गेनिक डिकम्पोज होगा तो उसमें से CH4 कंटेंट आपका रिलीज होगा. When it is mixed with the water, methane will make the water taste like a garlic. जो उसका टेस्ट होगा वो कैसे होगा, आपके गार्लिक जैसा टेस्ट आएगा. The gas is one slightly soluble in water and therefore easily removed by the aeration. ये जो आपका गैस है ये आपका slightly soluble है, it's not a completely soluble और insoluble नहीं है, it is a slightly soluble. यानी अगर वाटर के साथ मिक्स भी हुआ तो मतलब वाटर अलग से दिखेगा, आप मतलब आपको समझ में आएगा और आपका गैस जो है वो अलग से समझ में आएगा. जैसे हमारे इसमें अगर हमने ऑयल को मिक्स किया है वाटर में तो हमको समझ में आता है कि ऑयल थोड़ा अलग दिख रहा है, वाटर थोड़ा अलग दिख रहा है. वैसे ही आपका this gas is trapped by water, but you will be dissemination between both. Okay. The next is a taste and odor. Aeration is effective in removing only those taste and odor that are caused by a volatile materials. देखो जो भी volatile materials मतलब जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट के कारण उसमें आ रहा है तो आपका एरेशन ऑक्सीजन प्रोवाइड करने से उस टेस्ट एंड ऑर्डर को आप उसको रिमूव कर सकते हैं. Those that have a low boiling point and will vaporize very easily. Methane and hydrogen sulfide are example of this type of material. Many taste and odor problems in a surface water could be caused by oils and byproducts that algal produces. Since oils are much less volatile than gases, aeration is the only practical effective in removing them. So next is iron and manganese. Iron and manganese minerals are commonly found in a soil and rock. Okay, ये बहुत आराम से क्योंकि बहुत रिच अमाउंट में हमारे इंडिया में अवेलेबल है. It is easily found by your soil and rocks. Iron and manganese compound can dissolve into a groundwater as it percolates through the soil and rocks. Okay, iron in the ferrous form and manganese in the manganese form are objectionable for several reasons. Okay, water containing more than 0.3 mg per liter of iron. I repeat, 0.3 mg per liter of iron. ये Fe का concentration है, ठीक है. Will cause a yellow to reddish brown stain.
अगर आपका 0.3 से ज्यादा 0.3 mg/L से ज्यादा आपका कॉन्सेंट्रेशन हुआ हो आयरन का, सो इट विल कॉज येलो टू रेडिश ब्राउन स्टेन ऑफ ए प्लम्बिंग फिक्सचर और ऑलमोस्ट एनीथिंग दैट इज इन कॉन्टैक्ट। आप देखो कि रस्टिंग भी होता है तो कौन सा कलर होता है, दैट इज स्लाइटली येलो होता है, उसके बाद वो ब्राउनिश में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई इफ द कॉन्सेंट्रेशन एक्सीड 1 mg/L, यहाँ पे 0.3 था, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इफ इट एक्सीड 1 mg/L, द टेस्ट ऑफ द वाटर विल बी अ मेटेलिक। अगर ऐसा पानी को अगर आपने टेस्ट किया, सो ये आपका आयरन मेटल का ही आपको टेस्ट देगा, एंड द वाटर मस्ट बी अ टर्बिड, और वो क्या होगा, वाटर भी आपका टर्बिड कहलाएगा। Magnesium in water, magnesium in water, even at a level as low as 0.1 mg per liter, will cause a blackish staining of a fixtures and anything else in a contact. Magnesium का जो lower concentration भी रहेगा तो भी आपको वो blackish staining देगा। Okay, magnesium concentration level that can cause a problem are 0.1 mg per liter and above. अब देखिए उसका जो maximum limit ही है, that is a 0.1 mg magnesium है mg। ठीक है, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 0.1 मिलीग्राम पर लीटर एंड अबव। ओके, तो उससे ज्यादा रहा तो आपको प्रॉब्लम ही है। इफ द वाटर कंटेन बोथ आयरन एंड मैग्नीज, दोनों ही चीजें अगर एक साथ है, स्टेनिंग कुड वेरी फ्रॉम डार्क ब्राउन टू ब्लैक। वो येलो में नहीं आएगा, हमने ये स्पेसिफिकली देखा था आपके आयरन में अगर 0.3 है तो इट कॉजिंग अ येलोइश और रेडिश ब्राउन। बट इफ इट इज both if both are present in the same time, so you can see the staining could vary from a dark brown to black. Typical consumer complaint that our laundry is a stain and that the water is red or dirty. The water containing iron and manganese should not be aerated unless filtration is provided. I repeat, water containing iron and manganese should not be aerated unless filtration is provided. Aeration provide करने के पहले आपको उसे फिल्टर कर लेना चाहिए, जो कि उसमें अगर टर्बिड होगा तो वो रिमूव हम कर पाएंगे। दैट्स उसके बाद ही आप उसको एरिएशन प्रोवाइड करोगे। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज इंजेक्टेड इनटू वाटर थ्रू एरिएशन। हम यही तो कर रहे हैं एरिएशन में, हम क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज द मोस्ट कॉस्ट बेनिफिशियल, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में हम लोगों ने अगर ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते गए या ज्यादा अमाउंट में हमने उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, एक सैचुरेशन लेवल के आने के बाद भी हमने उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते जा रहे हैं, सो इट विल कॉज समथिंग एल्स। ये आपको और भी प्रॉब्लम देने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोले तो कोरेसिव होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो आपका जो एयर बाइंडर्स है वो ज्यादा हो जाएगा उसमें। Okay. It increases the palatability of the water by removing the flat taste. The amount of oxygen that water can hold is dependent on the temperature of the water. Yes, of course. DO जो आपका डिपेंड करता है, ये आपके ऑक्सीजन के, आपके वाटर के टेम्परेचर के साथ में डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपका वाटर का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे DO की वैल्यू आपकी कम होती जाएगी। जैसे जैसे आपका वाटर का टेम्परेचर कम होगा, वैसे वैसे DO की वैल्यू आपकी अच्छी रहेगी। So this is all about that. Okay, the colder the water, the more oxygen the water can hold. However, water that contain excessive amount of oxygen can become a very corrosive. अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन जा रहा है तो भी वो आपके लिए ड्रॉबैक है, it will cause a corrosive. Excessive oxygen can cause an additional problem in the treatment plant by, for example, causing a air binding of the filters. क्या हो सकता है कि ज्यादा एयर होने से जो आपके फिल्टर्स के पोर्स है वो क्या हो जाएंगे, दैट विल बी फिल्ड बाय एयर। अगर वो एयर से एक बार फिल्ड हो गया तो वाटर जब पास करना चाहिए तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो एयर ने उसकी जगह को ऑक्यूपाई कर लिया है, वो उस वाटर को पास होने देगा नहीं। इट विल बी अ ट्रैप फॉर द वाटर, सो दैट्स व्हाई एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी इज नॉट गुड। सो देयर बेसिकली टू कैटेगरीज ऑफ एरिएशन। सो कैटेगरी क्या बोलता है कि एयर इनटू वाटर, हम क्या करेंगे, वाटर में एयर को इंट्रोड्यूस करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, एयर में हम वाटर को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बोथ द मेथड्स आर नोन एज एरिएशन, दोनों भी चीजें उसमें पॉसिबल है। एयर इनटू वाटर, दिस मेथड क्रिएट्स अ स्मॉल बबल ऑफ एयर दैट आर इंजेक्टेड इन द वाटर। हम एरिएशन प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्मॉल बबल्स। ओके, water into air, this method is designed to produce a small drops of a water that fall through air. All aerators are designed to create a greater amount of a contact between the air and water. हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं,
हम कर रहे हैं ताकि एयर और वाटर का जो कांटेक्ट है वो अच्छे से रहे और अच्छा बन जाए, ताकि आपका जो एयर है, आपका जो ऑक्सीजन है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर में पेनिट्रेट हो पाए। और जो आपका ट्रांसफर मैकेनिज्म होने वाला है, यानी कि एयर इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज वन ट्रांसफर मैकेनिज्म। सेकेंड इज कि आपका जो गैसेस है, डिसॉल्व गैसेस, दैट विल बी एक्सपेल आउट, वो वहां से वाटर ड्रॉपलेट से बाहर हो जाएंगे, या आपका जो आयरन है, मैग्नीज कंटेंट है, वो आपको बाहर हो जाएगा। सो दिस इज the fundamental of that aeration. So aerators further can be classified into four types. You can see a gravity aerator, spray aerator, diffused aerator, and the mechanical aerators. Now this gravity aerator further can be classified in a four, that like cascade aerator, inclined apron type aerator, slat tray aerator, and gravel bed. One more type will be there, like a cone aerator, that is also considered in many books. So, especially I have not mentioned here in this diagram because इन सब बेसिस में और भी कुछ सब्स्टिट्यूट टाइप के एरिएटर्स भी बनाए गए हैं जो हमने इसको लिस्ट आउट नहीं करते हैं। ओके, सो लेट्स सी दिस वन बाय वन। विल सी अबाउट अ कास्केड एरिएटर। व्हाट डू यू मीन बाय कास्केड? आप देखोगे इफ यू सी दिस डायग्राम, तो यहाँ पे देखो ये स्टेप वाइज दिया गया है। दिस इज स्टेप वाइज। This is your raw water. Now this is your aerated water. What is actually happening? Whatever your water, this overflow water will be there. It will be splashed it out. यहाँ पे splashing action होगा. It will be a splash on what? On this surface. तो क्या होगा? जैसे ही वो splashing होगा, तो water, वो जो water droplet है आपके different different fraction particles में convert हो सकते हैं. So that splashing, and also this splashing of water, this splashing of water as well as, sorry, this splashing of water will also cause a introduce of the oxygen. वो आपके एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रहा है। देखिए अगर आपका दिस इज योर थिकनेस, दिस इज योर थिकनेस, तो हम क्या कर रहे हैं, इस थिकनेस को, ये स्प्लैशिंग एक्शन से हमने क्या किया है, इसे हमने कम कर दिया। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो सकता है ये वाले साइड से भी और ये वाले साइड से भी। सो दिस इज अ गुड मेथड। और ये स्टेप एरिएटर है, मतलब ये फर्स्ट स्टेप में ऐसा होगा, फिर दोबारा वो स्टेप होगा, फिर तीसरा स्टेप होगा, फिर चौथा स्टेप होगा। सो दिस इज अ कैस्केड एरिएटर। इन दिस वे इट वर्क्स। ओके, जितने बार भी स्प्लैशिंग होगा उतने बार ऑक्सीजन का इंट्रोड्यूस होगा और उतने बार आपका जो डिजोल्व गैसेस है वो बाहर निकलेगा। सो this is this concept is coming from where? ये आपके कहाँ से आ रहे हैं? आपने अगर देखा होगा, if you see झरना आपने देखा होगा या आपने रिवर्स देखा होगा, तो many of times आपका जो वाटरफॉल होता है, वाटरफॉल के जस्ट नीचे की तरफ से डाउन साइड से आप देखिए, आपके बहुत से चट्टाने ऐसे स्टेप बाय स्टेप रहता है जहाँ से वाटर फ्लो होकर निकलता है। एंड इफ यू सी दैट वाटर, दैट वाटर इज सो, मतलब दैट वाटर इज सो फ्रेश कि आप उसे, मतलब आप नॉर्मली तरीके से भी आप उसको इनटेक उसका कर सकते हो। दैट इज फुल्ली रिच विद योर ऑक्सीजन, क्योंकि एक एक ड्रॉपलेट आपके ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है। सो दैट कॉन्सेप्ट इज टेकिंग ओवर हियर। यहाँ पे भी हमने स्टेप में बनाने की कोशिश किया है, जैसे आपका झरना बहता है उसी तरह से हमने इसको बनाने की कोशिश किया है। इफ यू सी दिस डायग्राम, ये आपको क्रॉस सेक्शन हो गया। दिस इज द एक्चुअल फील्ड वर्क में जैसे होता है। सो यू कैन से दिस इज स्टेप, this is step which is known as cascade. Okay, so this is a cascade aeration. You can see in this the water is looking like a milky. तो ये जो आपका वाटर है, ये मतलब एक एक जो आपका वाटर का लेयर है वो आपके एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है। हमने जैसे पहले भी कहा था कि जितना डीपर रहेगा, जितना ज्यादा डेप्थ रहेगा आपका वाटर का, उसमें CO2 कॉन्सेंट्रेशन होता है, हाई रहता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि उस वाटर के जो लेयर्स है उसको बहुत हम लोग थिन थिन लेयर्स में हम लोग वाटर ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। In all cascade aerator, aeration is accomplished in the splash zone. Okay, the aeration action is similar to a flowing stream, as we said now. Splash areas are created by placing a block across the incline. जैसे ये आपका incline है, इसमें हमने क्या बनाया है, blocks बनाए हैं। Cascade aerator can be used to oxidize the iron and to partially reduce the dissolved gases. They are the oldest and the most common type of aerator. This is a very common, which is using across the India. Next is the inclined apron aerator with riffle plates. You can see this is your inlet, this is your outlet.
ये आपका रॉ वाटर है या आपका ट्रीटेड वाटर है। तो क्या हुआ है कि यहाँ पे हमने ये एक स्लैट ट्रे, सॉरी वी हैव प्रोवाइडेड अ इंक्लाइन एप्रॉन, और यहाँ पे अब देखिए दिस इज रिफल, एक बैफल जैसा हमने क्या होना है ब्रेकर दिया उसमें। तो क्या होगा वाटर, लेट मी शो यू, व्हेन द वाटर passes when the water passes like this, यहाँ पे क्या है, एक एक ऐसा ब्रेकर दिया हुआ है, एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसके वजह से दिस विल बी a hydraulic jump, this will be a hydraulic jump, and this hydraulic jump will be in contact with the water. So you can see a small thin layer is traveling, a small thin layer of water is traveling from this. It is traveling in this way. It is in contact with the your ozone. So it is in contact with your atmosphere. When a hydraulic jump is provided, then again it comes to atmosphere, contact of atmosphere. Then again you can see the water is going in this way in a thin layer. Again there will be a riffle over here, riffle plates. Again some hydraulic jump will be there, and again water will be flow in this way. So what is happening over here? Again the splashing of water is happening in this particular point, in this particular point, and that a thin layer of water is in contact with your atmosphere, where oxygen is getting introduced and dissolved gases were expelled out. Water falls along an inclined plane or apron. Breaking up of water due to apron causes agitation. We are providing this refill for the agitation purpose. Agitation increases the contact of air and water. This is the only point where we are increasing the contact point between water and the air. So this is about the inclined apron aerator. Now next is a slat tray aerator. Now again fundamental is same. See this, this is your inlet, water is going inside from this point. Okay, now if you see this properly, this is the, here you can see they are, we are providing a spray. ये अगर आपको दिख रहा होगा, so this is your spray. Here we are having providing a nozzle. यहाँ पे एक सिंपल नोजल दिया हुआ है, परकुलेशन पाइप दिया हुआ है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, water is a water droplet is converted into a fraction of droplets. So okay, water is divided into a number of droplets. Okay, then these number of droplets are traveling from this tray. Now this tray are inclined. अगर मैं इसी को थोड़ा सा, ये अगर हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं, अगर मैं इसको अगर आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाने की कोशिश करूं, so these are like this. ये कुछ आपका इस तरह से रहेगा. ओके, व्हाट विल हैपन, वाटर विल बी पास ओवर हियर, इसके ऊपर में आएगा, फिर वाटर इसके ऊपर में आएगा, फिर वाटर इसके ऊपर में आएगा, फिर से वाटर इसके ऊपर में आएगा, फिर वाटर इसके ऊपर में आएगा, देन फाइनली इट इज कलेक्टिंग इन द आउटलेट चैम्बर. या आपका जो आउटलेट चैम्बर है यहाँ पे उसको कलेक्ट किया जाएगा. ओके, सो बिफोर दैट स्क्रीन इज आल्सो प्रोवाइडेड ओवर हियर. नाउ दीज आर द रिमूवल प्लान्स. दिस इज अ लिफ्टिंग लंग्स. This is a top fan, this is a ventilator. Ventilator क्यों हमको, मतलब हम यहाँ पे भी ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, that's why. This is your inlet. Okay, so this is all about the slat tray. ये कैसे वर्क करता है. अगेन जैसे कैस्केड एरिएशन में हमने देखा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो वैसे ही यहाँ पे ट्रे के ऊपर में एक ट्रे से दूसरा ट्रे, दूसरे ट्रे से तीसरा ट्रे, तीसरे से चौथा ट्रे, तो ये से आपका वाटर मूव करता रहेगा और वो आपका एरिएटेड होता रहेगा. ये बात ध्यान में रखिए कि जितने बार हम लोग उसको जितना हम लोग टाइम उसको जितना हम लोग उसको कॉन्टैक्ट पीरियड देंगे आपके वाटर और ऑक्सीजन के लिए, उतना अच्छा आपको उतना अच्छा आपका फ्रेश ऑक्सीजन आपका वाटर में मिलेगा और उतना ही आपको फ्रेश वाटर आपको अवेलेबल होगा. बट वी हैव टू सी द लिमिट्स एज वेल कि आपका ज़्यादा डीओ नहीं रहना चाहिए. अगर ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा so it may cause a corrosion to the system. So consists of a closely stacked superimposed wood slat tray. Water is sprayed evenly on the top tray. Water trickles from one tray to other tray. I just tell you that water is trickling from one tray to another tray, another to third tray, like this. Air is supplied at the bottom with the help of a blower. Okay.
You can provide air as well. Okay. Next is the ventilation, discharge air and gases. So this next one is a gravel bed aerator. अगेन ट्रिकलिंग फिल्टर इसमें ही सॉरी इसको कई बार हम ट्रिकलिंग फिल्टर और ग्रेवल बेड लगभग लगभग एक जैसे ही हो जाता है, बट यहाँ पे मटेरियल का डिफरेंस है और कुछ नहीं, बट यहाँ पे भी जो एक्शन होगा दैट इज अ ट्रिकलिंग. ओके, सो वाटर इज स्प्रेड एट द टॉप एंड इट इज ट्रिकल डाउन द बेड ऑफ अ कोक और अ एंथ्रासाइट. ओके, तो ये आपका वाटर इनलेट है. दिस इज योर पाइप. अब इसमें क्या होगा, ये होगा आपका परफोरेटेड पाइप्स. अब जब परफोरेटेड पाइप्स होंगे तो आप देखो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है यहाँ पे. तो ये जो है ये क्या होगा, वाटर विल बी ड्रॉप लाइक दिस. वाटर विल बी ड्रॉप लाइक दिस. जस्ट सी दिस डायग्राम. मैं येलो कलर से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके, वंस द वाटर विल बी लाइंग डाउन ओवर हियर. यहाँ पे आपका ग्रेवल बेड है. ठीक है, नाउ वाटर परकोलेटिंग डाउनवर्ड्स. अब बाई ग्रेविटी क्या होगा, ये जो भी आपका वाटर है ये क्या होगा, परकोलेट होते जाएगा. आई रिपीट, द वाटर विल गेट परकोलेट. नाउ दिस इज द एयर रेंजिंग अपवर्ड. अब क्या करना है, ये ब्लोअर हम यूज करेंगे. इस ब्लोअर से हम क्या करेंगे, आपके जो एयर है उसको हम लोग ये ग्रेवल बेड में इंट्रोड्यूस करेंगे. आई रिपीट, हमारा जो एयर है हम क्या कर रहे हैं, इस ग्रेवल बेड में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. और यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका वाटर अवेलेबल है. तो क्या होगा, आपका वाटर एज वेल एज आपका जो एयर है वो दोनों प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा और ये फिल्टर होते हुए भी आ रहा है. देन फाइनली यू कैन सी दिस इज अ वाटर लेवल. आपका जो वाटर है वो यहाँ पे कलेक्ट होना स्टार्ट करेगा. ओके, देन आपका वाटर यहाँ कलेक्ट हुआ, उसके बाद ये देखिए दिस इज योर एरेटेड वाटर. ये आपका एरेटेड वाटर है. यहाँ पे सब आपका वाटर कलेक्ट हो जाएगा. बट जो वाटर आपको ड्रेन करना है तो ड्रेन करने के लिए हमारे पास में ये पाइप भी अवेलेबल है. ओके, सो दिस इज योर ग्रेवल बेड एरिएटर. यहाँ पे जैसे हमने देखा था कोक और एंथ्रासाइट यूज किया था, सिमिलरली यहाँ पे कोक को हम यूज करेंगे आपके ट्रिकलिंग बेड में. सो 3 to 4 ट्रे आर केप्ट फिल्ड विद अ कोक और स्टोन. I repeat, it is filled with a coke or stone. The thickness of bed is 0.5 to 0.6 meter. अभी ये जो बेड का थिकनेस होगा, ये कितना होगा, it is 0.5 to 0.6 मीटर. The distance between tray is 0.5 मीटर. अब देखिए थिकनेस ऑफ बेड बोलता है 0.5 और यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ट्रे इज ऑल्सो 0.5. सो दैट इज सेम. वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन पाइप एट द टॉप. अभी आपका जो रॉ वाटर है वो कहाँ से आएगा, आपका रॉ वाटर यहाँ से आएगा और उसके बाद ये परफोरेटेड पाइप से क्या हो जाएगा, ये थ्रू आउट ये कोक या स्टोन में आपको क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा. जैसे यहाँ पे आपका फंक्शन कर रहा था वैसे ही ट्रिकल होके आपका वाटर नीचे आ जाएगा एंड दिस विल बी अ एरेटेड वाटर. ओके, सो दिस इज हाउ दिस इज वर्किंग. ये जो आपका रॉ वाटर है ये यहाँ पे सॉरी ये जो आप हम इसको एरिएशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आपका ओपन सरफेस है. ओके, यहाँ पे ये ओपन सरफेस, हियर इट इज नॉट नोवेयर एज अ ओपन सरफेस. यहाँ पे एरिएशन हम लोग ये ब्लोअर से प्रोवाइड कर रहे हैं, बट दिस इज योर ओपन सरफेस. पानी ओवरफ्लो होगा और नीचे ऑटोमेटिक आता रहेगा. तो जैसे जैसे वो नीचे आएगा, पहले एक बार यहाँ से इसके ऊपर में, इसके ऊपर यहाँ से वाटर इधर पे ट्रिकल होगा, यहाँ से ट्रिकल होके इधर आएगा. सो फिर यहाँ से ट्रिकल होके इधर होगा. ओके, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा टॉप व्यू में देखेंगे तो वर्टिकल में सबसे टॉप में ट्रे का साइज थोड़ा छोटा होगा, उसके नीचे का ट्रे थोड़ा बड़ा होगा, उसके नीचे का ट्रे थोड़ा सा बड़ा होगा. लाइकवाइज ये आपका 3 या 4 ट्रे का ही रहेगा. ओके, सो दिस वर्क लाइक दिस. सो नेक्स्ट इज द स्प्रे एरिएटर. वेरी कॉमनली यू हैव सीन इन गार्डन्स. आपको कई बार आपके गार्डन्स में दिख जाते हैं. तो उसके लिए क्या लगेगा, आपको प्रोपेलर की जरूरत लगेगी और उसके ऊपर में एक नेट की जरूरत पड़ेगी. नेट क्यों, क्योंकि ये आपका स्क्रीनिंग से संभालता है उसको. आपका जो सब सरफेस वाटर है वो आपके ऊपर में आएगा और ये आपके एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा और ये आपका एरिएटेड कहलाएगा पानी. ओके, सो दिस इज अ गुड वन. और देखो ये बार बार वो मतलब वाटर को यूज करते रहेंगे तो आपको वाटर जो है वो हमेशा फ्रेश रहेगा. The actual one also have pasted over here. This is the actual one. Now when we say spray, so nowadays this is a new concept where spray यानी क्या,
आपके घरों में भी आप देखो वाटर के कम यूज के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नोजल्स को हमने फिट किया है, ठीक है, जो आपके वाटर को प्रेशर से आउट बाहर निकालेगा। व्हेन व्हेन वी से वाटर इज कमिंग बाय प्रेशर, तो क्या होता है उस बड़े वाटर अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट या स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स में या ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और ये नोजल एडजस्टर से हम क्या करते हैं उसके फ्रैक्शन ऑफ ड्रॉपलेट्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। Okay, so that is happening. That is a aeration. So again, the one more thing which is commonly used in the malls and all, this is also aeration. Okay. This type of aerator has a one more spray nozzle connected to a pipe manifold. Pipe manifold मतलब pipe के opening की तरफ में. The water is sprinkled in a fine jet through a nozzle to a height of about 2 meter to 2.5 meter. The nozzles are generally operated at a pressure. ये जो भी ऑपरेट करते हैं उसको प्रेशर के थ्रू ही करते हैं, दैट इज 0.07 to 0.14 न्यूटन पर mm square. The discharge through a nozzle will depend upon its design and available head of the water. It will be depend on what? Depend upon the design and available head of the water. आपको क्या प्रेशर चाहिए, कितना हेड चाहिए, उस पर ये डिपेंड करेगा. Then the next one is a diffuse air aeration system. Now when we say diffuse यानी क्या है कि हम वाटर के अंदर हम एयर को प्रोवाइड कर रहे हैं. So if you see this diagram, so this is your raw water. ये आपका raw water डायरेक्टली है, यहाँ पे दिख रहा है आपका, और यहाँ पे आपका इनलेट आउटलेट भी दिख रहा है. बट ये इसमें क्या हो रहा है कि हम कॉम्प्रेस एयर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. सी दिस इज अ कॉम्प्रेसर. ये कॉम्प्रेसर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने एयर को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया. ये येलो में देखिए हमने क्या किया, एयर को इंट्रोड्यूस किया. तो एयर जब पानी के अंदर में मिक्स होगा तो क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स बनाएगा. ठीक है, वो बनाएगा आपके क्या, वाटर ड्रॉपलेट्स. और ये वाटर ड्रॉपलेट्स पानी में तैरेंगे, ये ऐसे सेटल नहीं होते कभी. वाटर ड्रॉपलेट्स नेवर सेटल. व्हाट विल गो, इट इज अ नॉर्मल नेचुरल फिनोमेना कि दैट वाटर ड्रॉपलेट्स विल गो अपवर्ड. आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल दिस डिफ्यूज एरिएशन का. मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि फिश पालने का एक शौक होता है, तो कई लोगों के यहाँ पे आपका फिश टैंक रहता है. उस फिश टैंक में आपने देखना, आप एक पंप प्रोवाइड करते हो जो आपका धीरे धीरे वो बबल्स को रिलीज करता रहता है. वो सारे बबल्स आपके सरफेस में आके आ जाते, मिक्स हो जाते हैं, आके रह जाते हैं. ओके, व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग, वी आर एडिंग ऑक्सीजन. वो ऑक्सीजन किसके लिए ऐड कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन हम लोग उसकी एक्वेटिक लाइफ के लिए कर रहे हैं. वहां पे एक्वेटिक लाइफ यानी क्या होगा, वहां पे एक्वेटिक लाइफ लाइन है आपका जो कछुआ हो गया या आपका फिशेस हो गए, तो उसके लिए हम लोग वहां पे ऑक्सीजन को मिक्स कर रहे हैं. सो दैट इज द डिफ्यूज एरिएशन वन. वो आपका डिफ्यूज एरिएटर्स है. तो वही फंडामेंटल यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रख के समझो कि हमने क्या किया, कॉम्प्रेस एयर को इंट्रोड्यूस किया और ये आपका बबल फॉर्मेशन हो गया. ठीक है, अब ये बबल फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो वाटर है और एयर है, अब वो बबल तो हमेशा रहेगा नहीं. ऐसे नहीं कि बबल परमानेंट हो गया, वो टेम्परेरी है. अभी उससे क्या होगा कि कुछ बबल्स जो है वो अंदर वाटर के अंदर में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ बबल्स जो है सरफेस में आते हैं. लेकिन कुछ बबल्स जो वाटर के अंदर में है, तो क्या होगा, जैसे ही वो बबल्स फुटेगा, जैसे ही वो बबल्स ब्रेक डाउन होगा, तो वहां पे जो ऑक्सीजन है वो ऑटोमेटिक जो आपका सराउंडिंग वाटर है उसके कांटेक्ट में आ जाएगा. आई रिपीट, उस ऑटोमेटिक वो सराउंडिंग वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगा, जिसकी वजह से वहां का वाटर का डीओ वैल्यू आपका इंक्रीज कर जाएगा. So this is the phenomena. The air bubbles while coming up from the bottom of the tank come into close contact of a water contained in the tank, and aeration of water is thus achieved. The depth of a aeration tank is generally about 2.5 meter. ज्यादा डेप्थ नहीं होता, 2.5 मीटर to 3 मीटर, यानी कि एक मंजिला, एक फ्लोर के बराबर. And they are generally work on the principle of a continuous flow with a minimum detention period of a 15 minutes. एक टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट के लिए उसको वाटर को स्टोर करोगे. The quantity of air consumed per 1000 liter of water varies from 0.3 meter cube to 0.6 meter cube. I repeat, the quantity of air consumed per 1000 liter of water. एक 1000 लीटर वाटर के आपको एरिएशन प्रोवाइड करने के लिए कितना एयर का जरूरत है, you will require a 0.3 मीटर क्यूब. आपको 0.3 मीटर क्यूब से लेके 0.6 मीटर क्यूब क्या रिक्वायर्ड है 1000 लीटर्स को ट्रीट करने के लिए या एरिएटेड प्रोवाइड करने के लिए.
So this is the schematic diagram which we have provided, और this is the actual one जो आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में रहेगा. सो देखिए यहाँ पे ये डिफ्यूजर्स भी प्रोवाइड किया गया है. ठीक है, ये जैसे आपका कॉम्प्रेसिंग है, कॉम्प्रेसिंग पाइप है. दिस इज अ कॉम्प्रेस पाइप. तो यू कैन सी हियर इट इज अ कॉम्प्रेस पाइप. और बाद में यहाँ पे क्या होगा, एयर को डिफ्यूज कर रहे हैं. सो यहाँ पे हम लोग और भी हमने क्या किया है, परफोरेटेड पाइप्स लगाए हैं जिससे हम एयर को यहाँ पास कर रहे हैं. उसके बाद में ये डिफ्यूजन होगा एयर का, एंड डिफ्यूजन विल बी फर्दर लुक लाइक दिस. ये आपका बबल फॉर्मेशन होता रहेगा विच विल बी लुक लाइक दिस. ओके, सो लास्ट वन इज अ मैकेनिकल एरिएटर. नाउ अभी हम जो भी है, हमने बोला कि वाटर हम एयर में देंगे या एयर को हम वाटर में करेंगे, लेकिन हमने जो कुछ देखा तो उसमें ऐसा कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट हमने यूज नहीं किया था. लेकिन फॉर द मेन पर्पस ऑफ एजिटेशन, जहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट आवर्स कम रखना है और आपको लार्ज अमाउंट में आपको वाटर को ट्रीट करना है, ऐसी जगह पे आपको क्या करना है, मैकेनिकल एरिएटर्स का यूज करना है. नाउ मैकेनिकल एरिएटर्स में क्या होगा, पैडल होगा, पंप होगा, जो कि आपके वाटर को क्या बोलेगा, टर्बुलेंट देगा. जैसे हम टर्बुलेंस प्रोवाइड करेंगे, सो water may be splashed out in the upward direction and it will be in contact with your atmosphere. So this is the fundamental of that. So this can be divided into two ways, that is surface aerator, next one is a turbine aerator. ऐसे ये दो टाइप के एरिएटर्स मैकेनिकल एरिएटर के अंदर में आते हैं. तो सरफेस एरिएटर कंसिस्ट ऑफ a submerged or a partially submerged impellers. I repeat, it has a submerged or partially submerged impellers which are currently mounted in the aeration tank. Okay. The surface aerator agitate the wastewater or water vigorously entering air. ज्यादा से ज्यादा जो आपका मैकेनिकल एरिएटर्स है, हम इसको आपके वेस्ट वाटर के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे ही इतना एजिटेशन का जरूरत है. नॉर्मल सरफेस, नॉर्मल वाटर में इसका जरूरत नहीं पड़ता, बहुत कम पड़ता है. ठीक है, लेकिन अगर आपको आपका प्रोसेस बढ़ाना है, बहुत रैपिडली आपको वर्क करना है, तो आपको फिर मैकेनिकल एरिएटर्स की जरूरत है, अदरवाइज नहीं. So surface aerator agitate the wastewater or water vigorously entering air in the wastewater and causing a rapid change of the air-water interface to facilitate the solution of the air. Now, turbine aerators are usually upflow type that rely on a violent agitation of the surface and air entering of the air, their efficiency. A draft tube may be utilized to control the flow pattern of the circulating liquid within an aeration tank. The draft tube is a cylinder with a flared end mounted concentrically with the impellers and extended from the just above the floors of the aeration tank to just beneath the impellers. कहने का मतलब क्या है कि हमें एजिटेशन प्रोवाइड करना है. वाटर में टर्बुलेंस आना जरूरी है. टर्बुलेंस आएगा तो एजिटेशन होगा, एजिटेशन होगा तो आपका वाटर इट मे बिकम इन कांटेक्ट विद योर एटमॉस्फेयर. ठीक है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जितना ज्यादा टर्बुलेंस होगा उतना वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा. उतने एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से उतना अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को वो कंज्यूम करेगा, और जितना ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा उतना आपका डिसॉल्व गैसेस को रिमूव करेगा. सो दिस इज द होल फंडा. नाउ यू कैन सी दीज आर द सम डायग्राम्स. So this is your mechanical aerator where you can see this is a partially submerged. This is not a fully submerged. This is a partially submerged, क्योंकि इसका इम्पेलर देखो ऊपर साइड में ही है. ठीक है, तो क्या करेगा ये पेडल के थ्रू क्या होगा, बहुत ज्यादा एजिटेशन होगा. एजिटेशन होगा तो ये जो नीचे का पानी है इट विल कम इन अपवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज जो उसके पेडल्स हैं. इस पेडल्स के कारण क्या होगा, वाटर में भी due to this centrifugal force water may go in the upward direction, like in this direction. ये बाहर के डायरेक्शन में आपका वाटर बाहर निकल सकता है. जब ये पानी ऐसा बाहर निकलेगा, पानी जब इस डायरेक्शन में आएगा, बाहर निकलेगा, आई रिपीट, तो क्या होगा, जितने बार ये बाहर निकलेगा उतने बार आपके एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रहा है. जितने बार वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रहा है, जितने देर के लिए वो एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन उसमें ट्रांसफर हो रहा है एंड द डिसॉल्व गैसेस आर कमिंग आउट. सो दिस इज द नॉर्मल फंडामेंटल ऑफ दैट. सो सिमिलरली आपका एक और है, यहाँ पे रहेगा, ये एक और चीज है जहाँ पे वाटर जो रहेगा विल बी गो लाइक दिस. इसी को अगर मैं बताऊं तो दिस विल बी द एक्चुअल डायग्राम.
ठीक है, दिस विल बी एक्चुअल डायग्राम। यहाँ से वाटर आपका अंदर में गया, टर्बुलेंस हुआ और ये आपका पानी बाहर, सॉरी, दिस इज द ओरिजिनल वन ऑफ दिस। ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल वन ऑफ दिस, दिस इज अ ट्यूब टाइप, ये आपका ट्यूब टाइप है, दिस इज अ डिफरेंट वन। ठीक है, नो दिस इज द एक्चुअल रियलिटी। आप जब देखोगे कि हम, अगर हमने ये टाइप की सब चीज़ों को हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, तो हमने ऐसा प्रोवाइड किया, तो आप देखो ये जो मिल्की टाइप दिख रहा है, दिस इज नोन एज एजिटेशन। यहाँ पे आपका एरिएशन प्रोसेस हो रहा है, दिस मिल्की शो दैट द एरिएशन प्रोसेस, द turbulence happening over there. Okay, so this is the last one, this is the cone aerator. Cone aerator is somehow look like a cascade aerator, वहाँ पे स्टेप फॉर्मेशन में दिया हुआ था, whereas आप देखोगे थोड़ा सा ट्रे फॉर्मेशन में दिया है। यहाँ पे ऊपर में एक लेयर है, फिर नीचे एक लेयर है, फिर एक नीचे लेयर है, तो क्या होगा, वाटर ओवरफ्लो होते हुए नीचे नीचे नीचे, जैसे ट्रिकलिंग फिल्टर में हमने देखा उस टाइप का ही कुछ ये दिखेगा। बट कोन एरेटर्स आर यूजली प्राइमरली टू ऑक्सीडाइज आयरन एंड मैग्नीज फ्रॉम अ फेरस सल्फेट, सॉरी फ्रॉम अ फेरस स्टेट टू द फेरिक स्टेट, फेरस से फेरिक state prior to a filtration. The design of the aerator is similar to the cascade type. ये देखने के लिए cascade type का ही मतलब प्रिंसिपल सेम है, with the water being pumped to the top. आपका जो वाटर है देखो, ये नीचे से आपका जो ये जो आपका दिख रहा है, इसके यहाँ सेंटर से लेके, ये सेंटर में से लेके नीचे तक के पाइप रहेगा। ठीक है, ये एक आपका अंदर से अंदर में एक पाइप रहेगा, सेंटरली इनसाइड देयर विल बी अ पाइप। ओके, जहां से आपका जो वाटर है दैट विल बी गो इनसाइड। ओके, ये आएगा और यहाँ पे आपका वाटर कलेक्ट होगा, व्हेन इट विल बी फ्लो, व्हेन इट विल बी फुल्ली फिल्ड वाटर, देन इट विल बी ओवरफ्लो, देन ये आपका डाउन आएगा। ओके, और इट मे हैव सम पोर्स, जिससे कि वाटर आपका नीचे, वहीं से नीचे भी जा सकता है। ओके, सो these are the type, with the water being pumped to the top of the cones and then being allowed to cascade down through the aerators. ठीक है, so this is all about the aeration. Okay, in next class we'll see the numericals, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स एक कास्केड एरिया में आते हैं और लिटरली इसमें आते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा आप लोग। ओके, you can go for your next class, but before leaving class, punch your roll numbers, that is very important. Okay, if you have any problem, if you have any doubts, you can stay over here. Okay, very soon we'll send you academic calendar of this semester, sorry, if this year हम ये साल का आपको एकेडमिक कैलेंडर लेंगे और मैं आपको स्पेशली उसमें एड्रेस भी करूंगा बाद में। ओके, if anybody having any doubt, you can ask me or you can leave.